India is 17 billion government. Continue. Okay, Digital India is everyone. $17 billion Today's our government program topic to is build a Digital national India, and we India. can divide our topic in three parts. First is its information, and second is drawback, and third is benefits. Let's start to its information of Digital India. The Digital India program was a big step taken by the government of India to to improve India's economy and to transform India into a digital empowered country. And Digital India benefits everyone. several scheme launched by the government, and the worth was in 1 lakh crore. And there are many schemes like education and digital scholarship, digital portal, and DigiLocker. And what's your view, gentlemen? Digital India benefits everyone either directly or indirectly. Those who are aware of computer knowledge can benefit it directly, and those who are not aware of digital media can enjoy the benefits of others. It has benefits like it helps in online education. Many students are able to study from home and anywhere because of Digital India. Those who can't afford online offline coaching because of high prices able to study just because of Digital India. Digital India has more many benefits. Like in our government department, we don't have to wait in our lines. We can pay online and ultimately saves our time. We can order anything like food and other stuff online. It gets closer to our friends and relatives who are far away from them. Digital India helps in many different ways. It has many consequences as well. People are facing cyber crimes and other problems also. What's your view on Shahbaz, The over vision it. of Digital India is to transform the country into a digitally empowered society and knowledge economy. It would ensure that government services are available to citizens electronically. It would also bring in public accountability पांचू through पार्टिसिपेट mandated करना delivery टॉपिक है डिजिटल इंडिया of government services कंटिन्यू electronically. शाबाश What's your view, everyone? Yes, Yes, as Digital mentioned India earlier, is a it has flagship definitely cut program off of lines Government of India in government with the institutions. vision of transform India into a empowered society and knowledge economy. Digital India was launched by Government of India in order to improve the electronical and technological infrastructure, and in order to increase the online connectivity. Yes, and one of the biggest advantage of digital India is the digital payments that we use these days, the UPI method, which has made public less dependent on carrying cash with them, and they can do transactions with their phone very easily, and they can transfer money online very easily through net banking. So these services, other including Make in India program, as Digital India is a beneficiary of many other programs such as Make in India, the Startup Bharat Mala, Startup India, and it also the Startup India is a initiative which helps the blooming startups by providing them funding and sponsorship. And Make in India is a great initiative by the Indian government to start making products in India so that we are less dependent it? on imports from other countries. It saves a lot of paper. From that we are saving a lot of trees, so it save our environment as well. There is one thing I would like to tell. In rural areas, most of the people don't know how to use cell phone. Yeah, it is benefited for educated person, so we have to share our technical knowledge to that lower class peoples who are not aware of Digital India, so that they can also compete and aware of Digital India, how to use Digital India. There are also another hand, Digital India, the people who are aware of technical knowledge must have to share knowledge with the people who are lack of their skills, like illiterates, poor students and farmers. So there are both pros and cons for the Digital India. Digital India makes us advance as well as it is an obstacle for the poor peoples and illiterates, because they can't afford digital gadgets to pay online, to work online and to educate online. What's your views, guys?
The Yes, overall the scope for the Okay, program yes, is the to want to prepare add India more for a knowledgeable future, to make into the technology. villages with high internet data speed. And with the scheme program of Digital India, जो रूरल एरियाज हैं उन पर जो डाटा इंटरनेट डाटा हाई स्पीड है वो पहुंची गई है। जो रूरल एरियाज के पीपल हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन्हें भी बहुत कुछ समझने का और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन क्लासेस डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट होने का मौका मिला है और उन्हें समझ आई है इससे। and gentlemen, we can add some points. It save our time and it is easy to use, and through this we can save ourselves from COVID virus. And what's your view, gentlemen? Yes, communication skills are also flourishing because children are Speak loudly. communicating. Hali, speak loudly. Yes, children are communicating more like texting, planning, video calling, or playing social games and and social networking also. And technology also having positive impact on thinking skills also. The Okay, government hopes gentlemen, let's this. move to its next point, is drawbacks of digital India. The internet speed which come daily, including hotspot and Wi-Fi, does not work fastly, and lack of users of smartphone, and shortage of skilled worker in our areas such as technical. And what's your view, gentlemen? Yes, As we all know, we there are can many notice that benefits, but it has also many consequences as well. People are facing cyber crimes, concerns, and many other problems. Lot of youth wasting their time for the video games, and parents must be careful about it so that we can't face these problems to make our India digital. Lastly, it depends on us how we can use it. It will give fruitful result if we use it in a better way, and it can also destroy us if we use it in a wrong way. We can't move high without internet. So digital India, we have to go with it. yes, as we noticed a few days earlier, the servers of Facebook, WhatsApp, and Instagram, they went down. So there was this huge shortage of people, and there was an outrage too. So this shows us that we can't be entirely dependent upon Last 1 minute left, digital gentlemen. platforms right now. Due to Yes, digital gentlemen. So India, it is many now animals are about affected to the the rays wealth of the of rural mobile. areas and public and privacy internet across privacy is program being also electrical lost and fine motor skills are areas. diminishing. And Okay, gentlemen, everything has two ways. One is negative and one is positive. It's depend on us which way we use. And what's your view, gentlemen? This shows Yes, India is I achieving think digitalization in a very short interval of time. Though there are some cons like cheating, maltrace, online finishing has been increased. I believe everything will get soon through more security features in future. Okay, yes, stop. I think with time, Okay, continue, Dhananjay. Complete karo. yes, I Complete think karo. with time the services will get better, but till that we will have to make do with what we are given. Okay, stop. Thank you. चलिए, अब अपने कमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, लिख लीजिए। स्वाति पार्टिसिपेट नहीं कर पाई क्योंकि शायद उसका नेटवर्क इशू है, वो बार-बार डिस्कनेक्ट हो जाएगी और उसको बार-बार ऐड भी कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई इशू है। अर्ली मॉर्निंग नेटवर्क इशू हो सकते हैं, मे बी सर स्वाति कनेक्ट नहीं कर पाई। एंड दीपांशु, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, यू आर अ फेल इन ग्रुप डिस्कशन, ठीक है? तो अभी जो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है दीपांशु। हाँ, सबसे पहले रजत से बात करते हैं। रजत, ध्यान से सुनो अपने कमेंट्स, बाकी सब कैमरे ऑन रखिएगा। आप इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, आपको जस्ट इस क्लास के बाद ही अवेलेबल हो जाएगी आज की डेट से। सबसे पहला तो ये है रजत की आपके हैंड्स में मूवमेंट रहता है इस तरीके का। दिस इज नेगेटिव पॉइंट फॉर यू। नंबर 1, you speak on just 5 to 6 seconds maximum in the group discussion. आप जब पार्टिसिपेट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो आप लीड करते हैं, ठीक है, 20-30 सेकंड आप अच्छा बोलते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्टिसिपेंट आपका ठीक है, लेकिन उसके बाद
फर्स्ट पार्टिसिपेशन की बात, आप जितनी बार भी बोले हैं 5 से 6 सेकंड या 2 से 3 सेकंड के लिए आपने जीडी ग्रुप में बोला है, दिस इज नॉट एडमिटेबल, यू आर फेल इन जीडी। आप इम्प्रेस करने में फेल रहे भाई। हर बार 30 से 40 सेकंड तक बोलना होता है जब भी आप बोलना स्टार्ट करें, तालमेल बनाते हुए ग्रुप के साथ। अनुकृत, आपने स्टार्ट अच्छा किया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आपने तो पहली बार इतना बोलता हुआ सुना है क्लास के अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने कहा था कि आज के एसएसबी हम इस तरीके से मेजर करेंगे जैसे आपकी एसएसबी में होती है। जब भी आपने स्टार्ट किया बोलना तो पहली बार आप बहुत अच्छा बोले, दूसरी बार आपने जब बोलना स्टार्ट किया तो आप साइलेंट हो गए और आप शायद 3-4 वर्ड ही बोल पाए थे, तब अनु ने बोलना स्टार्ट कर दिया था, अनु प्रजापति ने, और आप चुप हो गए। ठीक है, चलो एक बार आपने कोऑपरेट कर दिया, दैट्स गुड। लेकिन थर्ड टाइम भी जब आपने बोलना स्टार्ट किया, आप अगेन फिर 2-3 वर्ड बोल के चुप हो गए। बीच में आप 1-2 बार अच्छा बोले हैं, तो ध्यान रखिए इस बात को कि जीडी में पार्टिसिपेट करें कैसे। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, इसका एक ही सोल्यूशन है, जब आप स्टार्ट करते हैं, जीडी स्टार्ट होती है और उसमें एट ए टाइम 3-4 लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, 3 to 4 मेंबर, तब चुप हो जाइए उसी टाइम। एक वर्ड बोल के, 2 वर्ड बोल के, एक सेंटेंस बोल के, 2 सेंटेंस बोल के, 4 सेंटेंस बोल के, जब आपको लगे कि अब तेरी फिश मार्केट बन गई है, तब चुप हो जाइए। हैव पेशेंस। जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। जैसे वो धीरे धीरे शांत होते हैं 30-40 सेकंड तक बोल के या उससे पहले, तो आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। और जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे, आप सेकंड टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप सिर्फ चुप हो गए थे बोल के, एक बार आपने कोऑपरेट कर दिया दूसरों को, चलो ठीक है कि बोलने दो उनको, सुनो 30-40 सेकंड तक। अगर 30-40 सेकंड का आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि 30 सेकंड कितने होते हैं, बढ़िया सा एक आइडिया होना चाहिए, जजमेंट कि हाँ 30-40 सेकंड इसको बोलते हो गए या 50 सेकंड इसको बोलते हो गए बस। तो अगर वो चुप तो हो जाते हैं तो आप लीड कर जाइए, बोलना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वो 30-40 सेकंड तक चुप नहीं हो रहे हैं और अब ये लग रहा है कि बस यार अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया इनका, अभी चुप ही नहीं हो रही, तो फिर आप बोलना तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 30-40 सेकंड तक सुनो, उसके बाद कंटिन्यू बोलना स्टार्ट करो। और जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो आपको भी 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक बोलना चाहिए। ये नहीं कि एक सेंटेंस बोल के, 2 सेंटेंस बोल के आप ग्रुप को लीड दे दो, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे बिल्कुल, जो आपको सुनना चाहता है। ठीक है ना अनुकृत? लेकिन आप अच्छा बोले आज, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था अनुकृत आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वीडियो तो मैं आपकी मदर को दिखाने वाला हूँ कि अनुकृत बोलता भी है। चलो, यानी आप लोगों को क्लास से भगाने का मुझे कुछ फायदा लग रहा है, लगा कुछ? तुम में तो बिल्कुल लगा है, अनुकृत में तो 100%। तो हाँ, 2-4 दिन आपको क्लास में से भगा दिया करूंगा बीच बीच में से, जब भी तुम मुझे थोड़े से लूज पड़ते दिखोगे, ठीक है? दूसरी बात, रजत ने स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट अच्छा किया, लेकिन बाद में 5-5 सेकंड पे आ गया। तो बंदा 5 सेकंड बोल के चुप हो जा रहा है, इसका मतलब ये कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है ग्रुप के साथ। 5 सेकंड बोल के 4-5 पॉइंट टू पॉइंट ही नहीं चले, कोई पॉइंट कोई टू नहीं पॉइंट चलेगा, पहले पॉइंट सर टू बता दी। पॉइंट कोई नहीं चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट रजत, वहां भी कोई नहीं चलेगा। कोई किसी एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करता, वहां पे कोई नहीं करेगा कोऑपरेट। सबको अपनी बात रखनी है। जब तुम्हें लग रहा है कोई पॉइंट टू पॉइंट नहीं चल रहा है, तो आप अपनी बात तो रखो ग्रुप के सामने, अपनी बात रखो, दूसरों की सुनो, दूसरों के पॉइंट निकाल के उनको लीड करो पॉइंट्स को। यही तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या है, यही तो है कि अपने आप को सिचुएशन में ऑर्गेनाइज करना। सिचुएशन कैसी होगी? सिचुएशन तो इनडेफिनिट है, वहां पता नहीं कैसी सिचुएशन होगी, किसी को पता ही नहीं है। कोई कोऑपरेट क्यों करेगा किसी को वहां? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि जीडी में कोऑपरेट करते हैं। सबको ये पता है कि बस हम अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है। सब बच्चे सिर्फ इतना सा सीख के आते हैं। कोऑपरेशन वाला फैक्टर जीडी में पता ही नहीं होता बच्चों को, कि आपको वही जहां में जी वर्ड लग गया जिस टेस्ट में, जो टेस्ट आप ग्रुप में कर रहे हो, आप कल सेना में अफसर बनने जा रहे हैं, आपको वहां ग्रुप में काम करना है, टीम के साथ मिलकर काम करना है। तो आपको टीम के साथ एडजस्ट करना, एक दूसरे की बात की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को सफिशिएंट टाइम सुनना, सफिशिएंट टाइम देना बोलने के लिए, और अपना भी सफिशिएंट टाइम अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये स्किल आनी चाहिए। और इसी स्किल की एकदम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंप्लेंट मत करो कि ये ग्रुप पॉइंट टू पॉइंट नहीं चला, ना तो फिर भी लोग सेंसिबल तरीके से बात कर रहे हैं, वहां नहीं करेंगे। जीडी में देखना सबके सेल्फ इंटरेस्ट हावी होते हैं वहां पे, मुझे सेलेक्ट करना।
तो ऐसे लोगों के साथ जो बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट जिनका हाई है कि हमें सेलेक्ट होना है, उनके बीच में बैलेंस्ड अप्रोच करके बैलेंस्ड परफॉर्म करना, यही तो कला है एक लीडर की। आगे चलो सैफ अली, आपको थोड़ा सा वॉइस एक तो रेज करना पड़ेगा बेटा, अपना माइक ऑन रखें कैमरा। सैफ अली, अंजू एंड स्वाति, इफ यू कैन देन ऑन योर माइक एंड कैमरा। माइक ऑफ कर ले सभी, कैमरा ऑन रखें बस। आप अच्छा बोले हैं बीच बीच में, नाइस, ऑपरेशन भी ठीक था। नीड टू रेज योर वॉइस। तो हो सकता है कि हम ऑनलाइन है, टेक्निकली इश्यूज हो सकता है कि वॉइस कम आती है, आई अंडरस्टैंड। बस मुझे वॉइस का थोड़ा सा आपका लगा कि थोड़ा स्लो वॉइस है, बाकी और कोई कमेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। दीक्षा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, नॉट एज एक्सपेक्टेड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा इतना बोल जाओगे आज, बढ़िया। ऑपरेशन फैक्टर राइट था तुम्हारा, बॉडी लैंग्वेज राइट थी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी तुम्हारा राइट था, गुड फ्लुएंसी इन इंग्लिश, यानी कि बढ़िया था आपका। मैं आपको अगर बोलूं तो आप टीम में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाए, और एज ए जीटीओ अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपको हाई मार्क्स देने वाला हूँ इस जीडी की, जो ये जीडी आज हमने की है। कोई कमी नहीं थी कहीं पे भी किसी भी तरह की, जो मैं आपको ऑब्जर्व कर पाया हूँ। एक कमी आई है छोटी सी, आपकी बॉडी मूवमेंट थी ऐसे आगे पीछे, आप बॉडी को ऐसे आगे पीछे खिला रहे थे, ठीक है। अगर आप इस हैबिट को अभी से छोड़ दें, क्योंकि ये रजत की एक हैबिट है, वो ऐसे हाथों को कभी पकड़ लेगा, कभी उसकी हैबिट उसको पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन उसको बार बार टोकूंगा हर जीडी में, तो वो एक टाइम पे आके आज उसने ऐसे पकड़ना तो छोड़ दिया, हाथ दूर दूर थे, लेकिन वो फिर ऐसे जलेबी ऐसी बना रहा था बैठे बैठे के, हलवाई होगा था पिछले जन्म में पता, ठीक है। वो हाथ के टिकते नहीं है, लेकिन कोई नहीं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था रजत का, वो एक देखने लायक था आज की जीडी में। देखना तुम्हारी सबसे बेस्ट जीडी है रजत आज की जो तुमने की है। तुम बोले थोड़ा हो, उसको हम ज्यादा कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम्हारा टोन था, बॉडी लैंग्वेज थी काफी, और जो तुम्हारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन था वो काफी बेटर था पीछे की जीडी से। रजत के अंदर ये बात बताना चाहूंगा। धनंजय, स्पीक लाउडली, गुड पार्टिसिपेंट, कोई कमेंट नहीं, ठीक है। मैं कुछ भी ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर पाया जो मैं तुम्हें बताऊं। ठीक टाइम पे तुम कोऑपरेट कर रहे थे, चुप भी ठीक टाइम पे हो रहे थे, बॉल भी ठीक टाइम पे, थोड़ा सा डाटा बढ़ाने की कोशिश करो। 10-15 सेकंड का तुम्हारा जाता है बोलने का, उसको 30 से 40 सेकंड तक लेके जाओ बस। 30 से 40 सेकंड कितना होता है, अच्छा सा आइडिया रखो, ये हमें पता होना चाहिए, तभी स्मार्ट वर्क दिखेगा जीटीयू को हमारा। चलिए, दीपांशु तो चुप रहा है, दीपांशु बोले क्यों नहीं बच्चे, ये बताओ, व्हाई नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशन? सर मेरी ज्वाइन नहीं हुई थी, क्लास लेट हुई है। तो फिर बोलो लेट, लेट क्या होगा, लेट भी नहीं बोले आप। हमने क्लास कहाँ ज्वाइन किया, हमने तो क्लास स्टार्ट ही 5:45 किया, 5:45 पे क्लास लगी है, बाकी तो वैसे ही निकल गया टाइम हमारा, सुबह से ज्वाइन करके शक्लें देख रहे थे, पढ़े गए पढ़े तो हम बाद में भी नहीं हो रही सर। हाँ, बाद में भी नहीं हो रही सर, जो मेरी क्लास सही चल नहीं रही थी। तो यार ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे यहाँ बैठोगे तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा बोलो, रजत जब आया ना, सबसे बढ़िया इंप्रूवमेंट रजत के अंदर है, मेरे जितने ही बच्चे हैं, थोड़ी सी अंजू में भी हल्की हल्की झलक दिखने लगी है मुझे इंप्रूवमेंट की। सबसे बढ़िया जो मैं जिसको छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि हाँ किसी लड़के ने इंप्रूव किया है अपनी मेहनत के दम पे, तो रजत है मेरी क्लास में। आज तक के जितने भी मेरे स्टूडेंट आए हैं, नालायक से नालायक लोग भी इधर मुझे मिले हैं, जो बिल्कुल की मतलब कि हाथ खड़े करते थे डर के कि सर इंग्लिश नहीं आती है, बोला नहीं जाता। रजत का मैं आपको फर्स्ट लेक्चर दिखाऊंगा जो मेरे पास ही आया था, उसका फर्स्ट लेक्चर मैं एक अलग से फोल्डर बना के, अलग से फोल्डर बनाऊंगा इसका वीडियो सेक्शन में, रजत फर्स्ट लेक्चर के नाम से, वो देखना, और उसी में आज का लेक्चर डालूंगा। आज देना, कंपैरिजन करना दोनों में कि कितना इस लड़के ने, एक गांव का लड़का है, गवर्नमेंट स्कूल का लड़का है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो गांव में बहुत अच्छी कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, ये कोचिंग भी जाता है इंग्लिश की, और मुझे लगता है कि इंग्लिश की कोचिंग को जो बेनिफिट होता है उससे ज्यादा बेनिफिट तो यहाँ ये बोलता है ना, बोल बोल के प्रैक्टिस करता है, सबकी रेल बना देता है, सुनता नहीं किसी को, इसका स्वभाव थोड़ा सा लगता है कि ये नॉट कोऑपरेटिव है, लेकिन मैं इसको टॉकता इसलिए नहीं हूँ कि इसको बोलने दो, अगर एक लय में बोलेगा तो उसकी मेच्योरिटी आ जाएगी लैंग्वेज के ऊपर, फिर इसको कोऑपरेट करना भी सिखा दूंगा जब इसका टाइम आएगा जिसकी का, अब इसका टाइम है। तो इस लड़के ने कभी डर नहीं माना, यानी कि मेरे से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट इसके अंदर मैंने देखी है, इतने इंप्रूवमेंट तो मैंने भी नहीं किया था अपनी लैंग्वेज के अंदर इतनी जल्दी,
मुझे भी 3-4 साल लगे थे इंग्लिश को ढंग से जितना मैं बोल पाता हूँ इतना बोलने में। 3-4 साल की एफर्ट थे मेरे इसके पीछे। ये तो 4-5 महीने में लड़का छा रहा है। इसमें कॉपरेशन फैक्टर निकल रहा है थोड़ा, वो बाद में भी डाल दूंगा मैं, इसको मैं बोलने दूँ, लेकिन इसको धीरे धीरे बताना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा कम बोला बीच में 3-4 बार, इसका एक्सीलेंट जाने वाला था आज। स्वाति पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, कारण सर नेटवर्क इश्यूज है, लड़की वो भी नाइस है। अंजू गुड, मैं आपको गुड बोलूंगा अभी, ठीक है। और वॉल्यूम को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करो। वॉल्यूम थोड़ा सा ना, तो गुस्सा नहीं आता क्या? गुस्सा आता तेरे को? एग्रेसिव नेचर आता है गुस्सा? थोड़ा गुस्से में बोला कर, इतनी शांत सी और मीठी मीठी मत रहा कर, ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा गुस्से में बाल बुल से खड़े करके ऐसे गुस्से में रहा कर, फिर तेरा टोन थोड़ा लगेगा कि हाँ एक आर्मी जेंटलमैन एक ऑफिसर का एक टोन आ रहा है, ठीक है। इतनी तो स्वीट सी क्यूट सी रहेगी तो वहां तेरे को लोग खा जाएंगे पकड़ के, और लड़कियां तेरे को, ठीक है, हिसाब भी नहीं देंगे जीडी के अंदर। तो इतना शांत रहने के 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला, टॉपिक की तैयारी कम है, दूसरा लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, तीसरा कॉन्फिडेंस कम है, चौथा ये कि आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव कोऑपरेटिव हो। ये 4 रीजन होते हैं। तुम्हारी जिस तरह की लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का जो तरीका है, 4 चीजें निकल के आती है। इसमें क्या फैक्टर है वो जल्दी ढूंढ के लेंगे, लेकिन पहले से बेटर है। चलो भाई देखो, हम लोग सब आप यहाँ आते हैं प्रैक्टिस करने, इस प्रैक्टिस का एक ही पर्पज है कि आप मैक्सिमम जितनी गलतियां करनी है कर लो। यहाँ पे खुला प्लेटफॉर्म है, कोई किसी को कोऑपरेट नहीं करता वहाँ पे, ना यहाँ पे कोई करता है, ऐसे ही चलता है वहाँ पे। लेकिन इस अनबैलेंस्ड प्लेन को जो बैलेंस कर जाए अपने आप को, बस वही विनर है। तो आज की विनर अगर मैं बात कहूँ तो आज की जो विनर है वो है दीक्षा। आज की जो लीडर है हमारे ग्रुप में से वो दीक्षा है। दीक्षा को मैं हाई मार्क्स दूंगा, ठीक है। तो कोशिश करना, बस एक ही विनर बनाया करेंगे ग्रुप का, एक ही लीडर चूज करेंगे ग्रुप में से। हालांकि आज अनुकृत ने भी अच्छा बोलने की कोशिश की है, धनंजय भी अच्छा बोला है, रजत भी अच्छा बोल के गया है, स्वाति ने भी, अंजू ने भी काफी अच्छे प्रयास किए, लेकिन लीडर एक ही बनेगा। कल की जीडी का देखते हैं कौन लीडर बनते हैं। किसी का कोई डाउट है तो ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग पूछ सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है सेल्फ डिस्क्रिप्शन क्या है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद वेट डिस्कस करेंगे और एक 15 मिनट का रजत तोमर का एक इंटरव्यू कनेक्ट करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि हम किस तरह की क्वेश्चनिंग और आंसरिंग आईयू आपसे कर सकता है, जस्ट एक आइडिया, ठीक है। और कल से हमारा नया टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा, आपको बता दिया जाएगा, तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल 7 तारीख है, नया 8 तारीख है कल, सॉरी, और नया वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है। और अब तक हमने केवल, आपका 1 मंथ पूरा हो चुका है कोचिंग का, आप ये मान के चलिए सारे के सारे, चाहे कोई कल आया हो क्लास में, 1 मंथ इज कंप्लीटेड। और इस 1 मंथ में 4 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पहला है ग्रुप डिस्कशन, दूसरा है वैट, तीसरा है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, और चौथा है इंटरव्यू। तो 4 एस्पेक्ट हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाँ, इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलेगी टिल 31 दिसंबर तक, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलेगी। 10 मिनट का जीडी, मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे। 10 मिनट का जीडी डेली होगा, 10-15 मिनट की वेट प्रैक्टिस डेली होगी, और 15 मिनट का इंटरव्यू किसी का डेली होगा। एसडीटीपी भी पक्का किसी न किसी का जो भी अपलोड करेगा चेक करेंगे। और जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है जो हम कल पढ़ने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस इस वीक में करने वाले हैं, एसआरटीस की, ठीक है भाई। तो आज आपका 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। जिसको भी डाउट है अपने कोचिंग में कि सर मेरा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, मैं इतना कर पाया हूँ इतना नहीं कर पाया हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।